हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेकअप ब्रशेस के बारे में। सो कपल ऑफ डेज बैक मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैं मेकअप स्टार्ट करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू बाय सम मेकअप ब्रशेस। तो तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे मेकअप ब्रशेस खरीद सकती हूँ एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुड कंसिडर। सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू हियर। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेकअप ब्रशेस की चॉइस के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं हूं परमजीत एंड आई पोस्ट ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट हियर। So I have over 100 videos on makeup, hairstyle, skincare, hair care, draping. I also have some fun challenges as well as vlogs. So please consider subscribing to my channel and also hit that small bell icon so that you do not miss any of my uploads. My other socials are listed down below in the description box. Now, let's get started. Now the first thing that I'd like to say is that जरूरी नहीं है कि अगर मेकअप ब्रशेस नहीं है तो आप मेकअप कर ही नहीं सकते। बिना मेकअप ब्रश के भी मेकअप हो सकता है। So this look that I have created is specifically without makeup brushes and I have only used my hands and my beauty blenders to create this look. That's a fun challenge that I took और वो वीडियो मैंने यहाँ पर आई बटन पे लिंक किया हुआ है आप सबके लिए। अब मेकअप ब्रशेस की अगर हम बात करें तो मेकअप ब्रश हमें हेल्प करते हैं इजी एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट्स के। Now whenever you choose makeup brushes, specifically अगर आपके पास कोई भी मेकअप ब्रश नहीं है तो there are a few things that you need to be careful about. Now the first thing that you need to consider is the material with which the brushes are made. So you have synthetic bristles वाले brushes and you have natural hair वाले brushes. So जो synthetic bristle वाले brushes होते हैं वो obviously cheaper होते हैं compared to natural hair वाले brushes. So if you are not going to do makeup on a daily basis या फिर बहुत ज़्यादा मेकअप या heavy मेकअप नहीं करने वाले हो आप तो I would suggest that you first try out synthetic hair brushes and then you can move on to natural hair brushes if you really want to. Now there are 1,000 brands of brushes online as well as even shops जो आप कंसिडर कर सकते हैं बट द मोस्ट कॉमन ब्रांड्स ऑफ ब्रशेस जो रेगुलरली लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ PAC जो मेकअप आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं एंड इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन नायका फॉर एवरीबडी टू यूज़ एंड दीज आर मोस्टली सिंथेटिक हेयर ब्रशेस तो इसलिए उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होती है। And of course इसके बाद there are more brands. You have the most expensive like Tom Ford, you have Sigma, you have Morphe, but those are higher priced brands. So someone who's just starting out in makeup can start with PAC or Amazon में भी brushes मिलते हैं जो बहुत ही सस्ते होते हैं almost like 500 to 700 के बीच में पूरा set of brushes आपको मिल जाता है। So you can start with that if you are interested in just starting into makeup. The next thing to consider is the size of the brush. आप जब भी कोई प्रोडक्ट ब्रश में ले रहे हैं जितना ब्रश का साइज है उतना प्रोडक्ट आपके फेस पर एक बार में डिपॉजिट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली जब भी आप कोई प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हो अपने फेस पे देखिए कि आपको कितनी जगह में वो प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है एंड अकॉर्डिंगली यू चूज योर ब्रश। Now I'm going to give you an example here. Now suppose there are two brushes, this one as well as this. अगर मैं फाउंडेशन लगाना चाहती हूँ अपने फेस पे so I have a whole area of my face जिसे मुझे कवर करना है। If I use this brush वो one go में इतने एरिया में that is almost इतने स्पेस में वो फाउंडेशन को डिपॉजिट करेगा। So I'll be much faster when I use this brush. Comparatively, if I use this one, this is a smaller brush compared to this one. तो अगर मैं इससे फाउंडेशन लगाने जाऊंगी तो it's going to deposit only in a very small area compared to this one. तो इसीलिए मुझे इस ब्रश से फाउंडेशन लगाने में बहुत टाइम लगेगा। So that is why I will not use this one for foundation. On the contrary, अगर मुझे कंसीलर लगाना है which is on the inner corners of my eye या फिर स्पेसिफिक जगह पे जैसे सपोज मुझे यहाँ पे अगर हाईलाइटिंग करनी है तो दिस ब्रश इज परफेक्ट क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर कंसीलर लगाना है। आई विल नॉट वांट द कंसीलर टू गो मे बी हियर और हियर एनीवेयर तो उस कंडीशन में मैं इसे यूज करूँगी। Similarly, अगर हम आई मेकअप की बात करें so we have different colors and shapes of brushes. अब अगर मुझे यहाँ पर कलर स्प्रेड करना है तो मैं इस तरीके के ब्रश को यूज करूंगी which is a blending brush and it's also flared out.
एंड इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस वन तो ये ब्लेंड नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी जगह में डिपॉजिट करेगा कलर को. सो दिस इज गुड फॉर माई इनर कॉर्नर अगर मैं उसे हाईलाइट करने जा रही हूँ, नॉट फॉर माई ब्लेंडिंग हियर. यहाँ पर अगर मुझे ब्लेंड करना है तो मुझे इस तरीके का ब्रश यूज करना पड़ेगा विच विल हेल्प मी ब्लेंड इट. बट इफ आई यूज दिस वन टू अप्लाई हाईलाइटर हियर तो ये बहुत सारी जगह में हाईलाइटर एक साथ अप्लाई हो जाएगा. सो आई विल नॉट बी यूजिंग समथिंग लाइक दिस फॉर माई इनर कॉर्नर. सो डिपेंडिंग अपॉन आपको किस चीज के लिए और कहाँ पर प्रोडक्ट लगाना है, आप साइज ऑफ द ब्रश से डिसाइड कर सकते हैं. Another thing that you need to see is that जो bristles हैं ब्रश के वो कितने tightly packed हैं. So I'll give you an example here. You look at these two brushes. So these two look quite similar to each other. If you look at both the brushes, दोनों brushes एक ही size के हैं, लेकिन ये ब्रश के जो bristles हैं वो ज़्यादा flared out हैं and इसके जो हैं ज़्यादा tightly packed हैं. Now, इस तरीके का ब्रश हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी क्रीम प्रोडक्ट लगाना होता है, लाइक अ कंसीलर और अ फाउंडेशन. सो दैट इज व्हेन वी यूज दिस वन बिकॉज दिस विल पिक अप द प्रोडक्ट एंड क्रीम प्रोडक्ट इसके अंदर रहेगा एंड देन इट विल इजीली गेट डिपॉजिटेड. बट इससे अगर हम पाउडर लगाएंगे तो पाउडर प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पैक हो जाएगा इसमें, और जैसे ही हम इस ब्रश को पाउडर में डिप करने के बाद अपने स्किन पर टैप करेंगे तो इट विल लीव अ पैच ऑफ कलर ऑन योर स्किन. तो जब भी हम पाउडर प्रोडक्ट यूज करते हैं तब हम इस तरीके का फ्लेयर्ड आउट ब्रश यूज करते हैं बिकॉज इट विल पिक अप वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द पाउडर प्रोडक्ट एंड जैसे हम हल्का सा टैप करेंगे इट विल जस्ट लीव अ लाइट रेसिड्यू ऑफ द पाउडर प्रोडक्ट ऑन योर स्किन, जिससे हमें ब्लेंडेड आउट इफेक्ट मिलने में ये ब्रश इज रियली हेल्पफुल. सो दैट इज वाई यू हैव टू सी कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट को भी यूज करने वाले हो अपने फेस पे. अगर आप क्रीम प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो उसके लिए कोई ब्रश चाहिए तो इस तरीके का पैक्ड अप ब्रश ले लीजिए. और अगर आपको ये है कि मुझे पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, ब्लश यूज करना है, शैडो के लिए चाहिए, तो यू टेक अ ब्रश दैट इज मोर फ्लेयर्ड आउट एंड विच हैज लूज ब्रिसल्स लाइक दिस. द नेक्स्ट थिंग टू टॉक अबाउट इज द साइज ऑफ द ब्रश. अब जब भी ब्रश लेने जाएं तो ये सोचें कि किस जगह पे आप उस ब्रश को यूज करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू यूज इट फॉर अप्लाइंग ब्लश और डू यू वॉन्ट टू अप्लाई आई शैडो और अ हाईलाइटर. अब अगर आप ब्लश के लिए यूज करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि ऐसा ब्रश हो जो इस जगह पर अच्छे से प्रोडक्ट को डिपॉजिट करे, राइट? अगर आप कॉन्टोर के लिए यूज करना चाहते हो, यू नीड समथिंग दैट विल हेल्प यू अप्लाइंग अ प्रोडक्ट हियर. So accordingly, the shape will differ. Now, if you choose a brush like this to apply blush, it's going to be perfect क्योंकि इसका size perfect है for your cheek size and it's also a little flared out. तो इससे आप आसानी से इस पूरे एरिया में डिपॉजिट कर पाएंगे प्रोडक्ट को. अब अगर इसी प्रोडक्ट से मैं बोलूँ कि मैं इसी ब्रश से लगाऊंगी अपना कॉन्टोर, तो इतने मोटे एरिया में वो कॉन्टोर डिपॉजिट करेगा. So just imagine how the contour is going to look अगर मैं इस ब्रश से contour लगाऊंगी तो. So for contour, this brush shape does not work. So for contour, I need a brush that is shaped like this, which is like a straight line. क्योंकि contour तो हमें यहाँ पर ऐसे ही लगाना होता है ना. So that's why we need something like this. Of course, this is more densely packed, तो इसीलिए ये cream contour के लिए है. अगर मुझे powder contour करना पड़ेगा तो I will need something that is more loosely packed like this one. So this is the same shape but it's loosely packed, इसलिए इसे मैं पाउडर के लिए यूज कर सकती हूँ. Now apart from those broad points, there are a few other things. The first thing is that बहुत सारे ब्रशेस अपने पैकेजिंग या ब्रश के ऊपर ही मेंशन करते हैं कि ये किस चीज का ब्रश है. So you have brushes जिसके ऊपर लिखा आएगा फाउंडेशन ब्रश, कंसीलर ब्रश और ब्लश ब्रश, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसी चीज के लिए उसको यूज करें और दूसरी चीज के लिए आप यूज ही नहीं कर सकते. So it's a very fluid art. So for example, this particular brush जब मैंने इसको लिया था तो इसके ऊपर लिखा हुआ था this is a highlighter brush. But I tell you, I have not even once used it to apply highlighter. मैं इनफैक्ट इसे यूज करती हूँ अपने ब्लशर को ब्लेंड करने के लिए. सो whenever I have applied blusher और अगर मुझे लगे कि थोड़ी हार्श लाइन हो रही है या फिर कॉन्टोर की हार्श लाइन हो रही है तो इससे मैं उसको ब्लेंड कर लेती हूँ and I think it's the perfect shape for that. And apart from this, I have this one जिसके ऊपर लिखा हुआ था foundation brush, but I usually mostly use it for applying my liquid blushes. So it's not necessary कि जो उसके ऊपर लिखा है आप उसी चीज़ के लिए उसको यूज़ करें.
ऑल्सो वाइल बाइंग द ब्रश मेक श्योर टू चेक वेदर इट इज सॉफ्ट और नॉट। तो थोड़ा सा आप ऐसे स्किन पे लगा के उसको देख सकते हैं, या फिर इवन बाय लुकिंग एट इट यू कैन मेक आउट दैट इट इज गोइंग टू फील सॉफ्ट ऑन योर फेस, क्योंकि अगर ब्रश आपकी स्किन को पोक करेगा तो फेस के ऊपर आप उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग अ ब्रश दैट इज गोइंग टू पोक your skin. Another thing I feel that you should be looking for while buying makeup brushes is the stem of the brush. Now this is the stem of the brush and जो bristles होते हैं वो stem से attached होते हैं और ये tightly pack करता है bristles को। अब अगर ये stem अच्छे से नहीं fixed हो और tight नहीं हो तो bristles जल्दी गिर जाते हैं and brush खराब हो जाता है। तो इसीलिए खरीदते वक्त ही देखें कि stem tightly set है कि नहीं है, कहीं loose तो नहीं है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है जब आप ब्रशेस लेने जाते हैं। नाउ दोज आर ब्रॉडली द थिंग्स दैट आई कुड थिंक ऑफ दैट you should be careful about while buying makeup brushes. I hope you gained some information through this video, and if you did, don't forget to like and share this video with your family and friends. I will be eagerly waiting for your comments and suggestions. Thank you for watching this video. मैं मिलूंगी एक और exciting video के साथ। तब तक के लिए I love you guys so much. Take care and stay safe. Bye bye.